Now, 41. In case of given goods, in case of given goods, what will be the story? Demand curve will usually be horizontal, downward sloping, vertical, upward sloping to the right, like supply curve. आंसर इज डी. हाँ, गिवन गुड्स में क्या होता है? When price falls, people buy less quantity. So there is direct price demand relationship. So supply curve की तरह होता है ना, positive relationship between. Okay, so answer D है. By consumer surplus, economists, the area inside the budget line above the price, in area beside the budget line above the price of commodity, area between average revenue and marginal, difference between maximum amount a person is willing to pay. No, this is the answer. C is the answer. The difference between maximum amount a person is willing to pay and for a good and market price. ये सी आंसर है. मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या कंफ्यूजन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है. कंज्यूमर सरप्लस होता है क्या, सुनो प्लीज. हाँ, आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस. See, this is demand curve, suppose. Now these are different units. ये फर्स्ट यूनिट है. अगर इतना भाव रखते हैं तो 1 यूनिट बिकता है. जस्ट ये डिमांड कर्व है. नाउ ये फर्स्ट यूनिट के लिए अगर 2 यूनिट बेचना है तो इतना प्राइस, 2. थर्ड यूनिट के लिए इतना प्राइस. नाउ ईयर 4 यूनिट बेचना है तो इतना प्राइस, कम प्राइस रखो. हाँ, यू कीप डिफरेंट प्राइसेस. एक फर्स्ट यूनिट बेचना है तो इतना, 1 यूनिट बेचना है तो ये, अगर इतना भाव रखेंगे ना तो 1 यूनिट बिकेगा. नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज योर एक्चुअल प्राइस इज दिस मच. ये डिमांड कर्व है. एक्चुअल प्राइस इसे तय हो गया ऐसा, इतना. So this is OQ is the quantity and OM is the price. So you will pay this much, but the satisfaction which you get is this entire area. ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको, यूटिलिटी. एंड दिस पार्ट इज सरप्लस. व्हाट?
जैसे अगर हम ऐसा डायग्राम बनाएं और ऐसे याद रखें, this is, say, this area is there, no, this is called surplus, and this is price paid, total price paid. Okay, so this part is total price paid and this is surplus. तो ये surplus इसमें तो है नहीं, इसमें बोला है कि surplus किसके बीच में है, area inside the budget line above the price of the commodity. Now this is not budget line, it is demand curve. Area inside the demand curve above the price of the commodity. That should be the answer. The difference between maximum amount a person is willing to pay. हाँ, तो ये बजट लाइन की जगह अगर डिमांड का होता तो फिर ए आंसर आता. फॉलोड. Which of the following is the property of indifference curve? Indifference curve की property, it's convex to origin. Yes, ये first property. 43. The marginal rate of substitution is constant. No, wrong. Marginal rate of substitution is increasing, sorry, falling. Marginal utility is constant. No, it is never constant. mu goes on diminishing. टोटल नहीं, दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेने के. टोटल ऑप्शन, टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटेस्ट वेयर बजट लाइन कट्स इंडिफरेंस कर्व. बजट लाइन कट्स नहीं, बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व. वहां पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, ये भी नहीं है. ऑप्शन ए. 44th. When economics speak about when economics speak about utility of certain goods, they are referring to demand for the goods? No. Usefulness of the goods? No. Expected satisfaction derived from the goods. This is the answer. Okay. 44 का सी है. Got it? Vertical supply, a vertical supply curve parallel to y-axis implies elasticity of supply is vertical curve, vertical to y-axis in inelastic. No, perfectly. So it is no, it is answer is A. No, 0. Followed मानव. For normal good with downward sloping demand curve. For a normal good with a downward sloping demand curve, the price elasticity of demand is negative and income elasticity must be negative. No, price elasticity is negative, but income elasticity is positive. प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. नो, रॉन्ग है. प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. नहीं, रॉन्ग है. प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव एंड इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. दिस इज आंसर D1. गॉट इट? An increase in supply is caused by increase in supply is caused by improvements in production of technology. Yes. Fall in the price of other goods which can be produced with the same input. तो हमारे को इनपुट ज्यादा मिलेगा. अब तो प्राइस हमारे इनपुट की भी कम है ना. सेम इनपुट्स, अदर गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द सेम इनपुट्स, उनकी प्राइस कम हो गई तो उनका fall in the price of factors of production. Now this is a dicey बना, ये वाला. Fall in the price here, this will increase the demand
this will also increase the demand. Fall in the price of other goods which can be produced using same inputs. तो यहां पे बोल नहीं सकते, लेकिन क्योंकि दो आंसर्स है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल इंक्रीज द सप्लाई and fall in the price of production, factor of production to improve supply. So we conclude what? All of the above. Elasticity of supply refers to what? Supply of goods, responsiveness of the supply of goods to changes in price, demand, price, cost of production, and it is price. The elasticity of supply means response of supply to the change in price. 48, the answer is B. Horizontal supply curve. What? A horizontal supply curve. Horizontal supply curve parallel to quantity axis, मतलब x axis, implies elasticity of supply is infinite. Parallel to x axis तो infinite supply, और parallel to y axis होता है तो जीरो होता है. 50th, contraction is supply is a result of supply कम क्यों होगा? Decrease in the number of producers. No, it is decrease in supply, decrease in price of the goods concerned. Answer is B. Conspicuous goods are also known as prestige goods, snob goods, Veblen goods, all of the above. Conspicuous consumption मतलब दिखावे के लिए होता है कि नहीं, तो उसका भाव बढ़ता है ना, तो और उसका डिमांड बढ़ता है. पता है तुम लोगों को? यस, डिमांड और बढ़ सकता है. जैसे iPhone is example of prestige goods or not? Snob goods, Veblen goods, है ना? तो उसका भाव बढ़ेगा तो और लोग लेते, बोलेगा अरे देख अभी तुम्हें और भी अच्छा लगेगा, है ना? लग्जरी गुड्स ने अल्ट्रा लग्जरी गुड्स, the quantity purchased remain constant irrespective of change in income. Quantity same रहेगी. This is known as what? Quantity purchase remains same, तो it is same रहेगा तो क्या होगा? चेंज इन इनकम में क्वांटिटी परचेज चेंज नहीं हुआ तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी हुआ कि नहीं? It is zero income elasticity. I hope you are getting this. An increase in income, the consumer will go for superior goods and consequently the demand for inferior goods will fall. This means मतलब inferior goods नहीं खरीदेगा. जैसे person is going to a cheap restaurant, लेकिन उसके पास पैसा आ गया तो वो वहां जाना बंद कर देगा और अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा, तो इंफीरियर गुड छोड़ देगा. इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. नो, देयर इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी इज नॉर्मली पॉजिटिव, बट क्योंकि वो इनकम ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो जाता है तो आंसर बी आएगा. When income increases, the money spent on necessities of life may not increase in the same proportion. मतलब इनकम बढ़ गई लेकिन
नेसेसरी से हम उतना खर्चा नहीं कर रहे, सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. डी आंसर. इट इज, क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब the luxury goods like jewelry and fancy articles will have, the luxury goods like jewelry and now luxuries को है ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि हाईली इलास्टिक. देखो अपने को इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल थे उसमें क्या लिखा, दो इट इज हाईली डिस्प्यूटेबल, यू कैन नॉट क्लासिफाई बिकॉज लग्जरीज अलग अलग काइंड की होती है, तो ये लोग ने जनरलाइज कर दिया कि फॉर नेसेसिटीज. हाँ ये हम लोग डिमांड इज रिलेटिवली inelastic and for demand is relatively elastic. Okay. The luxury goods like jewelry and fancy will have what? High income elasticity of demand. Income elasticity, हाँ. income वाला बोल रहे हैं. तो लग्जरी गुड्स का क्या होगा? बी. Just a minute. हाँ 56. A good cannot be consumed more than once is known as what? Non-durable goods. Relative price is price expressed in terms of money. When you get paid for babysitting your concern, relative price मतलब ratio of one money's price to another. 57C. Ratio of relative price मतलब दूसरे प्राइस से कंपेयर करने का. रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, एक का मनी प्राइस और दूसरे से कंपेयर करने का. 58(1). A point below the budget line of the consumer represents combination of goods that can be points below represents combination of goods which cost whole of the consumer's income. No, it is on the budget line. बजट लाइन पे पूरा पैसा खत्म हो जाते हैं. रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स इनकम. ये आंसर है, क्योंकि इसने बोला ऑन द बजट लाइन बोला होता ना तो ये आंसर होता था. ऑन द बजट लाइन का ये आंसर होता था, बट उसने बिलो बजट लाइन बोला है तो यार पूरी इनकम नहीं जाएगी. फॉलो दिस. Demand is desire of a commodity given price and those of related commodities. No. Interrelation between quantity demanded and price of a good, other thing remaining same. This seems to be correct. No. Willingness to pay for the good if income is larger enough.
एबिलिटी टू पे, खाली ये एबिलिटी टू पे नहीं होता, डिजायर भी नहीं ना। डिमांड क्या होता है? रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो ये बी वाला करेक्ट लग रहा है एकदम सबसे, है ना। सपोज टोमेटोज हैव -0.4 एज इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, नॉर्मल गुड्स की पॉजिटिव होती है, देन व्हाट वी कैन से potatoes, sorry not tomatoes, potatoes have -0.4 income elasticity। तो हम लोग क्या बोलेंगे? potatoes are inferior goods। potatoes are what? inferior goods। the price of tomato increases, people buy tomato puree। मालूम है ना, पेस्ट होती है ना जो। यू इन्फर द टोमेटो पूरी एंड टोमेटोज आर व्हाट? सब्स्टिट्यूट्स ना। टोमेटो नहीं तो उसकी पेस्ट ही चलेगी। चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स। इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस, डिमांड फॉर फिश विल बी। अगर चिकन का भाव बढ़ गया तो डिमांड फॉर फिश भी बढ़ेगा। इंक्रीज एंड डिमांड कर्व ऑफ फिश विल बी शिफ्ट राइटवर्ड्स ना। इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा ना, डिमांड बढ़ेगा और उसका कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज 62। Potato chips and popcorns are substitutes। A rise in the price of potato chips, अरे फिर तो पॉपकॉर्न ही खाएंगे ना, will dash the demand for popcorn and quantity of popcorn will increase the demand of popcorn and quantity of popcorn will also increase and increase। so 63 का आंसर A है। 64, if price of orange increases, demand for apple juice will। अरे एप्पल जूस सब्स्टिट्यूट है उसका, तो क्या करेंगे? डिमांड फॉर एप्पल जूस विल इंक्रीज बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स। 65th, an increase in demand for computers, other things remaining the same will increase in demand of computers will increase the number of computer bought, decrease the price, other things remaining same will increase the increase in demand। मतलब क्या? it is because of price or other factors? it is because of other factors। हाँ, तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट। हाँ, ये समझा? ये कैसे समझाऊं? एक सिंपल डायग्राम दे देने का बताता हूं। क्या ये? एक मिनट। हाँ, ये आगे चल के आएगा बहुत सारे डायग्राम। सी इंक्रीज, देखो ये है ना, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है। अब है ना, अगर समझो डिमांड बढ़ गया तो न्यू डिमांड कर्व आया। नाउ व्हाट विल हैपन? द प्राइस विल इंक्रीज
एंड द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बढ़ गई और ये प्राइस भी बढ़ गया, तो ऑप्शन डी आया। ये तो समझा रहा था, इंक्रीज द प्राइस ऑफ एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कंप्यूटर्स, खाली क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स व्हाट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, प्राइस हैज नॉट फॉलन। तो क्या होगा, ये देखो डायग्राम मैंने बताया ना, ये देखो, ये डिमांड था, ये सप्लाई था, इधर इक्विलिब्रियम था। अभी डिमांड कब इंक्रीज हो गया, तो डिमांड इधर चला गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ, अब नया प्राइस, पहले प्राइस इतना था, अब प्राइस बढ़ गया, इतना हो गया, पूरा इतना हो गया, और पहले क्वांटिटी इतनी थी यहां तक, अब क्वांटिटी बढ़ गई, तो कितनी क्वांटिटी बढ़ गई, इतनी क्वांटिटी बढ़ गई, ये बढ़ गई ना क्वांटिटी, और ये प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ओके, when the total demand for a commodity whose price has fallen, when the total demand whose price has fallen, price कम हो गया है, increases, whose price has fallen, demand increases because the price has fallen, it is called price effect. It is called what? Price effect. And price effect is a combination of it's a combination of income effect and substitution effect. Okay, 66th D. When the total demand for a commodity whose price has fallen is due to, ये हो गया ना 66, when the fall in the price of a commodity, consumer real income increases, yes, correct. Consumers real income decreases is wrong. There is no change in real income, absolutely wrong. तो ये आंसर आएगा। When an increase in the price of diamond, the quantity demanded also increases. So they are substitute goods, complementary goods, they are conspicuous goods, मतलब luxury goods, Veblen goods, snob goods, है ना। An example of goods that exhibits a direct price demand relationship, वो है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का डायरेक्ट रिश्ता होता है प्राइस के साथ। इन इकोनॉमिक्स, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस विद द फॉल इन इट्स प्राइस, इट इज नोन एज डिमांड इंक्रीज हुआ बिकॉज, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। The quantity supplied of goods or services is the amount. Quantity supplied of goods is the amount that is actually bought during a given period of time at a given price. Producers wish to, they could sell. Producers plan to sell during a given time period at a given price. They plan to sell, no? ये bought नहीं है ना, they plan to sell is supply, quantity supplied, answer C. Supply is limited resources that are available with the seller, cost of producing goods, entire relation between quantity supplied and price of the goods. C seems to be the correct answer. In a book market, supply of books will decrease. Supply if any of the following factor occurs except, मतलब which will not
decrease the supply. Decrease will decrease in the what? Decrease in the price of books. Decrease in the price of books will not decrease the price of supply of books. No. Sorry, this will also, it will not be called decrease in supply. एक मिनट बता रहा हूँ क्या इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट है, सुनो. देखो, अगर सप्लायर्स कम हो जाएंगे तो भी, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो भी सप्लाई कम हो जाएगी. इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस, तो देखो ये चारों फैक्टर्स है ना, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है. पब्लिशर्स कम हो गए तो सप्लाई कम होगी, प्राइस कम हो गया तो सप्लाई कम होगी. इंक्रीज अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्ट, कल भाव बढ़ने वाला है तो अभी लोग सप्लाई नहीं करेंगे. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर यूज, पेपर महंगा हो गया तो भी सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन उसको डिक्रीज नहीं बोला जाएगा. डिक्रीज, इसको डिक्रीज नहीं बोला जाएगा ना. दिस इज नॉट अ डिक्रीज, है ना. दिस इज, इट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, मतलब चारों पॉइंट हमको लगता है डिक्रीज ही हुआ. सो ऑल अदर आर डिक्रीजेस, बट दिस इज नॉट अ डिक्रीज. क्यों? if the price of computers increase by 10% and supply increases by 25%, तो supply 25 upon 10, answer is positive 2.5. हाँ, 74th answer is A. Follow this or no? An increase in number of sellers, an increase in number of sellers of bikes will increase the price of the bike. नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए तो प्राइस ऑफ द बाइक कैसे इंक्रीज होगी? डिमांड फॉर बाइक भी कम नहीं होगी. सप्लाई ऑफ बाइक्स, सप्लाई ऑफ बाइक्स पक्का बढ़ेगी. डिमांड फॉर हेलमेट्स वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को बाइक्स ही बोलेंगे. इफ द सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर इंक्रीजेस डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. अगर सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज. देखो सप्लाई कम हो गई है तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज. बताओ ये एग्जाम्स किस, ये बताओ तुम लोगों को डायग्राम. ये देखो बराबर. अब है ना, ये प्राइस थी से ओएम और ओपी प्राइस है ना. अभी क्या हुआ कि सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ये S1 हो गया. तो अब क्या होगा? प्राइस, सॉरी ये उल्टा कहो कर दिया मैंने, सॉरी आई एम, एक मिनट. ये डिमांड और सप्लाई उल्टा लिख दिया है. 1 मिनट. ओके, ये अब है ना सप्लाई डिक्रीज हुई, मतलब ये ऐसा हो गया. तो क्या होगा? न्यू प्राइस ये हो जाएगी
और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी। फॉलो दिस, फॉलो दिस। ये न्यू प्राइस हो जाएगा। यस, इंक्रीज इन, हाँ कौन सा था नंबर, 76 था ना ये, ठीक है, अभी हमारे 77 पे। अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमरास विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमरास अब्रॉड। नो भाई, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन द प्राइस नहीं होगा, डिक्रीज इन द प्राइस, इट विल डिक्रीज इन द प्राइस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ कैमरास व्हाट। डिमांड कम हो गया ना, तो प्राइस भी कम हो जाएगा और कैमरास भी कम हो जाएंगे बेचना। When the following statements about inferior goods are false, which is false about inferior goods? Inferior goods are those goods which we will never buy, no matter how cheap they are. No, we will buy. ये false है. Inferior goods are those goods which we want to buy more if we become poorer. हाँ, फिर हम ज़्यादा खरीदेंगे, बरोबर है ना, ये भी सही है, सही है। Then inferior goods are those that we buy more if we become richer. ये फॉल्स है, देखो ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। एज वी बिकम रिचर वी विल बाय लेस, वी विल बाय मोर, ये करेक्ट है। तो 1 and 3 आर फॉल्स, उसने फॉल्स पूछा है, तो विच आर फॉल्स? 1 and 3 इज फॉल्स। कंफर्ट लाइज बिटवीन, ए सी पॉइंट होगी, नेसेसरीज एंड लग्जरीज। In short period, supply can be changed. In very short period, supply cannot be changed in very short period. When supply curve moves to the left, it means lesser quantity is supplied at a given price. 81 का A रख लिया ना. Larger quantity is supplied. No, left में गया मतलब गया. Price has fallen and price has no change यार. Price को लेफ्ट में नहीं आता है, वो सेम ही कॉपी रहता है। फिर तो सेम अलग का हुआ है मतलब ये हुआ है, लेसर क्वांटिटी सप्लाइड। When supply curve moves to the right, it means when supply curve moves to the right, it means supply increases and more quantity is supplied at a given price. उसका opposite same. 82 का आंसर भी ए ही होगा। The elasticity of supply is defined as responsiveness of quantity supplied to a change in price. 83 मगा ए है। Responsive quantity supplied without change in price. No, ये डिमांड का ने कहाँ से आ गया? रिस्पॉन्सिव ऑफ डिमांड नहीं है ना, रिस्पॉन्सिव ऑफ विदाउट चेंज इन प्राइस। नो, इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is measured by dividing percentage in quantity supplied of a good by dash. Elasticity of supply is measured by dividing percentage change in quantity supplied of a good by percentage change in price. 84 का आंसर सी है। Follow this. Elasticity of supply is 0. It means it is perfectly inelastic. It is perfectly inelastic.
elasticity of supply is greater than 1, मतलब proportionate change in quantity supplied is more than proportionate change in price. I think 86 में ही correct है. If the quantity supplied is exactly equal to relative change in the price, then elasticity of supply is 1. ओके, हाँ ये है ना, ये आंसर क्या आएगा इसका? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 रुपीज टू 4 रुपीज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15. Find the coefficient of price elasticity. अब है ना, तुम लोग को इसमें क्या करने का बताओ. अगर हम आर्क इलास्टिसिटी देते हैं तो आर्क इलास्टिसिटी में आंसर क्या आएगा बताओ. व्हाट इज द चेंज इन द डिमांड? एक्चुअली इसमें तुम लोग को यूज करना है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड. ये है ना, चेंज इन डिमांड इज 0.5. सीयर अगर हम लोग ऐसे आते हैं कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड के दो मेथड है हमारे पास. देखो, एक तो पॉइंट इलास्टिसिटी लेंगे तो 2/6 होता है. ओके, और अगर हम आर्क इलास्टिसिटी लेंगे तो 2/मिड.5 होगा. चेंज इन प्राइस क्या होगा? सॉरी, दिस इज चेंज इन प्राइस. दिस इज चेंज इन प्राइस. ओके, 2/6 या फिर 2/5. चेंज इन डिमांड, इफ यू यूज फर्स्ट मेथड then it is 5/10. And this is 5/12.5. ये आर्क इलास्टिसिटी हुआ. अब है ना, इसमें तो आंसर क्या आएगा? 2/6 सॉरी 5/10 that is 0.5 upon change in demand is डिवाइड बाय, तो ये 1.5 आता है आंसर. इट शुड बी -1.5 आंसर है ना. आर्क इलास्टिसिटी से आंसर क्या आता है भाई? 1 आता है. इसमें 1 आता है, इसमें 1 है ही नहीं. है 1 नहीं है, तो आंसर शुड बी -1.5. प्राइस कम हो गया तो आंसर सी आना चाहिए. मेरे ख्याल से मॉड्यूल में रॉन्ग दिया है, ए दिया है शायद. फॉलोड दिस. yes, सप्लाई फंक्शन इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सम. सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू व्हाट? 10 plus 100 plus 10p. Find the elasticity of supply method when price is 15. See here.
क्या दिया इन्होंने, Q इज इक्वल टू 100 प्लस 10p। ओके, और इसने प्राइस क्या बोला है, नाउ सी हियर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ने बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड में भी आ सकता है ऐसे को। चेंज इन क्वांटिटी है ना, डी क्यू, ये है, दैट इज डी क्यू बाय डी पी इंटू, ये लिख लो तो अच्छा रहेगा, पी बाय क्यू। Now Q is equal to 100 plus 10p। अब डेरिवेटिव निकालेंगे dq by dp, तो वो 10 आएगा। हाँ कि नहीं, है ना, ये 10 आ गया ना ये पार्ट। नाउ p is 15, Q क्या आता है, 100 प्लस 10 इंटू 15, Q इज इक्वल 100 प्लस 10p। एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। हाँ, प्राइस इज 15 ना, तो ये 15 डालेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 माइनस 100 है, माइनस 100 है, सॉरी। हाँ, ये माइनस 100 है, तो ये माइनस 100 करेंगे तो 50 आएगा कि नहीं। हाँ, अब है ना, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, दिस पार्ट बिकम्स हाउ मच, 10, ये 10 हो गया, इंटू पी, पी क्या है 15 और ये 50, तो 150 डिवाइड बाय 50, आंसर इज 3। यू विल पुट प्लस 3 बिकॉज इट इज सप्लाई। समझा ये कि वापस समझाऊं, यू वांट वंस मोर, वापस सी है, माइनस Q इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 10p एंड P इज इक्वल टू 15। नाउ इलास्टिसिटी क्या होती है, इज dq बाय q अपॉन dp बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इज इक्वल टू dq बाय dp into p by q। now q is equal to minus 100 plus 10p। हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dq by dp क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, है ना, डेरिवेटिव किया है ना, 0 प्लस 10p दैट इज 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, तो ये 10 आया आंसर, इनटू, now p is 15 and what will be q, q will be minus 100 upon the q is equal to क्या, तो इलास्टिसिटी क्या होगी ऑफ सप्लाई विल बी 10
into price upon 50, that is 3 is the answer. I hope you have followed this. The figure below shows budget constraint of the consumer with an income of 900 to spend. अभी बजट लाइन कैसे बनाते हैं मालूम है ना? देखो ये 900 रुपया है ना, ये पूरी लाइन पे 900 रुपया उसका खर्चा होता है. On every point on this budget line he will spend 900. So he can buy 45 ice creams 900 रुपये में, और he can buy 90 chocolates 900 रुपये में. The price of chocolate is 10 and price of ice cream is 20. तो ये 20 और 10 लिख, ये आंसर आएगा बी. फॉलो दिस. No matter what price of coffee is, Arjun will spend exactly 100 per week on coffee. कुछ भी करो मैं 100 रुपया ही खर्चा करूंगा. वाह अर्जुन वाह. The statement implies that Arjun is very fond of coffee and therefore is inelastic demand. Arjun has elastic demand नहीं है भाई. Arjun demand for coffee is relatively inelastic. Arjun's demand for coffee is unit elastic. Total expenditure remains same. If total expenditure goes with the price, then demand is said to be relatively inelastic. If it goes with demand, then it is said to be relatively elastic. तो सेम ये खर्चा करने वाले हो, 100 रुपये खर्चा करेगा. तो a firm learns that own price elasticity of the product in manufacture is 3.5. Price elasticity, what the price elasticity is more than 1, what would be the correct action of the firm? अब है ना elasticity ज़्यादा है तो क्या होगा? Revenue will go with the demand or price. Revenue will, total revenue, total collection will go with demand. तो डिमांड बढ़ाना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्राइस लोअर करना चाहिए. Demand is elastic, so you should lower the price. At higher prices, people demand more of certain goods, not for their worth, but because of prestige value. This is called Veblen effect, Griffin's paradox, speculative effect, none of the above. It is Veblen effect. If the price of air conditioner increases from 30,000 to 30010 and the resultant change in demand is negligible, कुछ डिमांड में चेंज नहीं हुआ, we measure dash to the measure of elasticity. We have point, no point method वन है. 30,000 वही उधर ही वो पॉइंट पे लिखते खाली. थोड़ा चेंज हुआ तो पॉइंट इलास्टिसिटी देखते हैं, ज्यादा हुआ तो फिर आर्क पे आते हैं. गिवन the following four possibility, which one will result in increase in total expenditure? Demand is unit elastic, इसमें total expenditure नहीं बढ़ता है. Demand is elastic. When demand is elastic, demand goes with, sorry, total revenue goes with demand. Demand is elastic and price rises. तो अगर आप भाव बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाएगी. डिमांड इज इनइलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स. इनइलास्टिक है डिमांड तो इट विल गो विथ प्राइस, तो प्राइस तो गिर रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी गिरेगा.
Demand is inelastic and price rises. This will increase your total revenue. आया समझ में? देखो बताता हूं क्या है, लिख दूं क्या इसका आंसर? Supply curve shift to the right because of what? Improved technology, increase in factors of production. राइट में कहा जाएगा? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसे तो लेफ्ट में जाना चाहिए. इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी, नो, तो इट इज इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ओनली. ऐसे ऑल ऑफ द अबव में हमेशा ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, ऐसा मत सोचना. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऑल ऑफ द अबव तो हमेशा वही आंसर होता है. देखो इसमें नहीं था, ये आंसर है ए. Which of the following is correct? When the price falls, quantity demand falls. Wrong. Seasonal changes do not affect supply. ये भी false है. Taxes and subsidies do not influence supply. False. Lower cost, with lower cost, it is profitable to supply more of the commodity. This is correct. 97th का D is correct. If the demand is more than supply, then pressure, if demand is more than supply, the pressure or price will be upward. Demand ज़्यादा है तो price will move upward, no? The supply curve of highly perishable goods during the short period is generally, supply is perfectly inelastic. कुछ भी एकदम पेरिशेबल है तो आप वही भाव में सप्लाई करोगे ना, जो भाव मिलेगा वही सेम सप्लाई रहेगी, बिकॉज अदरवाइज इट विल लूज इट्स वैल्यू. सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट. सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट. The cross elasticity of rye bread and whole wheat bread, ये दोनों ब्रेड है, is expected to be, आंसर इज पॉजिटिव. अगर एक का भाव बढ़ेगा, अगर राय ब्रेड का भाव बढ़ गया तो होल ब्रेड का डिमांड बढ़ जाएगा. सो इट विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप. सब्स्टिट्यूट्स है ना, तो उनका क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होता है. क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर इज, अगर कंप्यूटर का भाव बढ़ेगा तो कंप्यूटर का डिमांड कम होगा और सॉफ्टवेयर का भी डिमांड कम हो जाएगा. तो कंप्यूटर की प्राइस का भाव बढ़ा तो इसका आंसर होगा नेगेटिव, है ना. The cross elasticity between bread and DVD is
डीवीडी और ब्रेड का क्या मतलब यार, इसमें कोई क्रॉस इलास्टिसिटी होती है क्या, है ना? आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट ढूंढना है। विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स डिमांड कैन बी फोरकास्टेड विथ परफेक्ट एक्यूरेसी। फॉल्स। परफेक्ट एक्यूरेसी कैसे आएगा भाई? The more the number of substitutes of a commodity, more elastic is the demand. More the number of substitutes of a commodity, more elasticity is the demand. No. ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो गए तो करेक्ट है ना, ज्यादा इलास्टिसिटी हो जाएगी ना यार। डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक। नो। गोल्ड ज्वेलरी will be negative income elasticity. No, it is positive income elasticity or not. People will buy more gold when they have more income. Suppose the income elasticity of education in private school is 3.6. Abhi it is more. What will you do? Indicate. Private school education is highly wanted by rich. No. Is a necessity? We cannot say. Education income elasticity is positive, तो we say that it is a luxury. है ना, हम लोग बोलते हैं ना इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो लग्जरी होती है, और नेसेसिटी में इनइलास्टिक होता है, लेस देन 1 होता है। 3.6 इज मोर देन 1. नो। The organizer of a cricket match decide to increase the price of ticket in order to raise its revenue. What they have learned from the past experience? Increase in percentage in ticket rates will always equal the percentage decrease in tickets. तो अगर तो इक्वल होगा तो रिलेटिवली इलास्टिक होगा। ये लोग भाव क्यों बढ़ा रहे हैं? तो डिमांड इन इलास्टिक होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी ग्रेटर देन। नो। परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी लेस देन परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सोल्ड। टिकट सेल्ड से मतलब ये टिकट सोल्ड ज्यादा होगी ना, डिक्रीज उतना नहीं होगा। नहीं, एक मिनट से यहां पे दिया है परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल बी ग्रेटर देन, हाँ ये रहेगा ना, ये डिमांड इज, देखो रेवेन्यू विल राइज इफ डिमांड इज इन इलास्टिक। अभी इसमें रिलेटिवली इनइलास्टिक ढूंढने का, तो ये आएगा परसेंटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट सोल्ड। आंसर इज बी। The following diagram shows relation between price of goods X and quantity demanded of good Y. We infer from that, देखो ये ना प्राइस ऑफ गुड्स X है और डिमांड फॉर, तो गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, नो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सब्स्टिट्यूट्स है ना, पॉजिटिव है, तो आंसर इज रिमोट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट नहीं है, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि ये ना रिलेटिवली इलास्टिक है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज वेरी हाई,
कर्व का स्टीप नहीं है ना कर्व, तो दे आर व्हाट, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब ये, हाँ, ये लोग ने नए ऑब्जेक्टिव ऐड किए हैं। दूसरे चैप्टर के भी आगे कुछ इसमें डायग्राम गिवन बिलो, अ चेंज इन ये डायग्राम देख लो, अ चेंज इन डिमांड विच मे बी कॉस्ड बाय द राइज इन इनकम ऑफ गुड इज अ नॉर्मल गुड। ये देखो ये ना, ये डिमांड है और ये डिमांड कम हो गया है, राइज इन इनकम नहीं होगी ना। अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज कॉस्ड बाय फॉल इन द प्राइस, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से ना, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव गिरेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, तो हमारा भी बढ़ेगा ना, हमारा तो कम हो रहा है डिमांड। चेंज इन डिमांड इज कॉस्ड बाय राइज इन इनकम एंड द गुड इज इंफीरियर गुड, यस दिस विल, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाता है इसमें, इंफीरियर गुड्स में, तो ये करेक्ट है। अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कॉस्ट बाय राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट के भाव बढ़ेंगे तो हमारा डिमांड बढ़ेगा यार, कम हो रहा है तो, है ना। तो आंसर सी है। राइज इन इनकम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगा ना। एंड इफ राइज इन इनकम है और इंफीरियर गुड्स है, हाँ, तो फिर हमारा डिमांड कम होगा, बराबर ये वाला। Which of the following alternatives would be true if the event presented the following diagrams? सप्लाई कम हो गई है, अ फॉल इन वेजेस कॉस्ट नहीं हो सकता भाई, अ शॉर्टेज इन रॉ मटेरियल, यस ये हो सकता है, इंक्रीज इन सब्सिडी नहीं है तो अच्छी बात है, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस नथिंग टू डू विद द प्राइस, है ना, अ फॉल इन वेज, अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व कम हो गया, सप्लाई कम हो गई है। डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड हैज शिफ्टेड टू द राइट, राइट में शिफ्ट हो गया है। विच फैक्टर्स, विच इवेंट्स वुड हैव कॉस्ट, राइट में हो गया मतलब डिमांड बढ़ गई है। और फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विद द, fall in the price of substitutes with the price of goods, सब्स्टिट्यूट का भाव कम हो गया तो हमारा भी डिमांड कम हो जाएगा ना, इंक्रीज कैसे होगा, राइट में गया है, राइट में गया मतलब इंक्रीज हो गया ना, शिफ्टेड टू द राइट। अ फॉल इन नॉमिनल इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, नो तो डिमांड कम हो जाएगा। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स रिमेनिंग अनचेंज, इससे हमारा डिमांड बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का भाव कम हुआ तो उसका डिमांड बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। अब फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड, तो अगर प्राइस की वजह से बढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इट विल नॉट शिफ्ट टू द राइट, इट विल बी ऑन द सेम कर्व। अ रोलर कोस्टर राइड इज द फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क विजिट, if the price of amusement, roller coaster ride is a function of amusement park visit. If the price of amusement park entry falls, demand for roller coaster rides will rise and demand curve will shift to the right. एंट्री फी फॉल हो गई ना, रोलर कोस्टर का तो भाव कम नहीं किया है लोग ने, तो डिमांड फॉर रोलर कोस्टर विल राइज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, अज्यूमिंग दैट एंट्री फी के बाद और पे करना पड़ता है। डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, देयर इज एन एक्सपांशन इन द डिमांड ऑफ रोलर कोस्टर एज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री,
रोलर ए क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, एंट्री और रोलर कोस्टर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए. तो ये डिमांड को बढ़ेगा. इफ अ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज प्लॉटेड ऑन द अबाउ टेबल विच रिप्रेजेंट प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये क्या डिमांड, तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट सप्लाइड सेम ही रहता है. तो क्या होगा, इट विल बी अ वर्टिकल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू सप्लाई रिमेन सेम ना. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए यहां पे. हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस नहीं, ये आंसर एक्स एक्सिस होना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए यहां पे. आंसर इज सी, बट चेंज करो, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होना चाहिए. क्वांटिटी सप्लाई रिमेन सेम, प्राइस कुछ भी होने दो. The average income of residents of two cities A and B and corresponding change in the demand for two goods. अभी है ना, इंक्रीज इन इनकम 12 है और चेंज इन डिमांड इज 6, तो चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स X एंड चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स Y. तो ये क्या है, इंक्रीज इन इनकम है दोनों में, चेंज इन डिमांड, तो दोनों में डिमांड बढ़ा है, नॉर्मल गुड्स है. और ये क्या है, ये इनकम बढ़ी है, डिमांड कम हो गया, तो ये इंफीरियर गुड्स है. और यहां पे ये बी इज नॉर्मल. एक्स इज अ नॉर्मल गुड्स इन बोथ द सिटीज, यस, एंड वाई इज अ इंफीरियर गुड्स इन सिटी ए, करेक्ट. नो, वाई इज अ, इनकम बढ़ी है तो डिमांड कम हो गया है ना, हाँ, तो बराबर तो है. बी इज करेक्ट, बोथ द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स. ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी है, मैंने पहले ये पढ़ लिया तो मुझे ये लगा, ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन. इफ द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग entire income in consuming point B at point B, advice, will you advise her? देखो ये है ना, ये इसकी बजट लाइन है, हर एक पूरे पे पैसा सेम पैसा जाने वाला है, तो ही शुड अटेन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. नो, तो यहाँ पे अटेन कर रहा है एट पॉइंट बी. वी विल टेल हिम टू गो फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये पॉइंट टच होके जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए कहीं पे, है ना. you should go here. Consume what? More of X and less of good Y. ये बोलेंगे ना उसको कि तू X बढ़ा, Y को कम कर, और यहाँ पे आ जाए. एक्चुअली टच होना चाहिए यहाँ पे. Follow this. Consume more of X and less of Y and reach point K. K पे मत जा भाई, ये पॉइंट इधर जाना चाहिए, इधर. K पे जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, वो इक्विलिब्रियम नहीं. यहाँ पे एक्चुअली टच होना चाहिए, दोनों टच होना चाहिए, यहाँ पे टेंजेंट होना चाहिए. दिस बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू IC2. IC2 एंड BL, PL शुड टच, तो वो पॉइंट पे जाना चाहिए. तो कंज्यूम मोर ऑफ X एंड रीच एंड लेस ऑफ गुड्स Y. Which of the following statement is true? The consumer is not maximizing her utility at point K. The consumer is not maximizing her utility at point K. बराबर है. The consumer is spending her entire income on both the goods. Yes. Consumer gets equal pleasure at point B and K.
B is also on first IC and K also on first IC, so he gets equilibrium. All of the above are correct. B and K give same satisfaction. ये इंडिफरेंस कब का आ गया, अलग चैप्टर में. The income, the effect of consumer surplus falls from E to F. देखो पहले ना ये ट्राइंगल था ना, जो ये कंज्यूमर सरप्लस था, अभी ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा. पहले ये कंज्यूमर सरप्लस था, ये पार्ट, ये वाला. नाउ दिस ट्राइंगल. तो इतना बढ़ गया ना ये ERCF, EFCR, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज हुआ है ना. क्या लिखा है, E to F हो गया, गिर गया, तो डिक्रीज तो हुआ ही नहीं, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है. D नन ऑफ द अबव. देयर इज इंक्रीज इन सरप्लस यार, इंक्रीज इन सरप्लस बाय EFCR. देखो पहले इतना था, अब ये इतना हो गया है, तो ये पार्ट बढ़ गया. ERCF. When the price rises from F to E, an increase in revenue earned by the seller is E to F हो गया ना. तो पहले इतना रेवेन्यू आता था, अभी इतना रेवेन्यू आता है, तो डिक्रीज हो गया. वी कैन नॉट से कितना डिक्रीज हो गया. When the price rises from F to E, increase in revenue earned by the seller. You cannot say, डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि ये अलग है पूरा. देखो पहले रेवेन्यू इतनी थी, ये यहाँ से FCQ1O, अभी इतनी है, तो ये इतना बढ़ गया और ये इतना कम हो गया ना. तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. डिक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस नहीं, ये द रेवेन्यू अर्न बाय द सेलर इज इंक्रीज इन रेवेन्यू अर्न बाय सेलर. वी कैन नॉट से इंक्रीज इन रेवेन्यू नो. पहले रेवेन्यू इतनी थी, ये पूरा था, ये था, अभी इतना हो गया. हाँ, तो ये कम हो गया इतना पार्ट. नहीं, फिर ये बढ़ भी गया ना, ये अपर हो गया ना. वी कैन नॉट से, आंसर इज नन ऑफ द अबव. हाँ, उसमें रॉन्ग दिया है. व्हाट वुड बी द बजट लाइन, हाउ वुड द बजट लाइन बी अफेक्टेड द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फेल. दोनों के भाव कम हो जाएंगे तो इट विल शिफ्ट टू द राइट्स. द न्यू बजट लाइन will not shift. The new budget line will be parallel to the old budget line. The budget line shifted to the new budget line will have the same slope as the original, so long as the price of both goods are in the same change in the same proportion. See here, ये लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होगा. यू कैन बाय बोथ, ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो ना बोथ. तो न्यू बजट लाइन विल बी हैव द सेम स्लोप एज ओरिजिनल बजट लाइन. तो ये सही आंसर है, डी. During recession, economies experience some unemployment and reduced level of income. How would recession likely to affect the market demand of new car? Demand curve will shift to the left. कम हो जाएगा ना, decrease in demand. Demand will decrease. Follow this. आया समझ में?